हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Environment awareness. There is environment awareness here, a most politically important chapter, but it's the first topic arrive here. Environmental degradation. What is environmental degradation here? Environment constitutionally is a very important part of our life. Understand? To understand life without understanding of impact of environment is simply impossible. The need to the protect our environmental can be ignored only at our perils, and we use our environmental resource in our day-to-day life. And these resources are renewable and non-renewable here. There are two types source, or renewable and non-renewable. We have to be more consciously is the consuming to non-renewable resource like a coal and petroleum, which are prone to be a depletions. All the human activity have a impact on environment. But in the last 2 centuries or so, the human influence on environment has increasing or manifolded due to rapidly population, the growth and the fast development in the science technology. Today, our life is the scientific life, and there is a development of science technology. There is a very big for the peoples in today, and these two are the major factor in reducing to the quality of environment and causing a degradation. The environmental degradation poses a great danger to the man's often survive. It should be realized to the sooner than the later, and the conservation and improvement of the environment are vital for the survival and the well-being of mankind. Natural resources of land, air, and water have to be used wisely as a trust to ensure a healthy environment for the present and future generation. There is a most important point here, environmental problem. There is a next point, environment problem. The sum of the is a notable problem of environment can be identified as a under first here a land, air, and water. There is the most important land, air, and water. The population of the land and water has affected to plant, animals, and human beings. The quality of soil is a degradation of resulting in loss of agriculture land, and the loss of estimated to be about 5 to 7 million hectares of land each year. The soil erosions as a result of wind and the water caused of world daily, and the ravings flood have to be there. Urban perils constitutes like a deforestation, salt in the rivers bed, inequalities, and the improves to drainage, and the loss of man and property also. The West Oceans after beginning turn in the tumbings as a ground for all nuclear wastes and poison and the polluted their whole natural environment. There is a most important factor. And the next point here is the population growth. There is a major factor of the environment problem. The population growth means to the more people to eat and breathe, and putting excessive pressure on the land, forest, and ultimately disturbing of ecological balance. The next topic is most important, population growth. There is a major factor of the problem of population growth or environment effect. The population growth means more people to eat or breathe. There is a need for the breath and eat, and they are putting excessive pressure on the land and forest, and ultimately disturbing the ecological balance. There is a major problem for the environment pollution here, population growth. Our growing population is putting a pressure on the land, leading and poor quality of productivity and deforestation, the loss of forest land so necessary for a ecological balance, and extermination of the wildlife, leading to the imbalance in the ecological order. And loss of wildlife is a heritage, and the ultimately dwellings of the several species. The growing population is not only a problem for the natural environment, it is a problem for any other aspect to the environment, say, for example, social, economic, and political, etc. There is a population is a major problem for the create of the environment. The next topic is urbanization. Urbanization is the most important factor for the environment degradation. There is a urbanization is a less our source of pollution and therefore a threat to be the environment. The urbanization means to the meetings a race of people from a village to cities. The net result of urbanization is a dirt, disease, and disaster.
In a state of growing globalization, environmental problems like sanitation, ill health, housing, water supply, and the electricity keep expanding. On the other hand, the environmental degradation is causing our rural life due to the indiscriminate of collection of the firewood, overgrazing, and depletion of the other natural resource. And next is the most important factor or degradation of the environment. There are industrialization. The industrialization is a major factor. Industrialization is occupied with there is the development of mean of transport and communication has not only the polluted the environment but also had to lead to the shrinking of the natural resource. There is a most important the shrinking of natural resource. The both way to the loss of really heavy and increasing level of the heat fluxes. The carbon dioxide and particulate of radioactive nuclear waste and the like create environment hazard. On the other hand, the consumption of the conventional source of energy lead to the loss of natural resource. We are building a world that is without caring for a future generation. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पर्यावरण की समस्याएं। देखिए पर्यावरण की समस्याएं कई कारण हो सकते हैं। कहते हैं पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन के बिना हम जीवन की जो है समझना भी कठिन हो जाता है। पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता और आप जो है नष्ट करना जो है एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा सकता है। अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग सदैव हर एक व्यक्ति करता है और ये संसाधन नवीकरण और नवीकरण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। देखिए आप जो पर्यावरण का उपयोग कर रहे हो, पर्यावरण के साधनों का उपयोग कर रहे हो, या तो आप नवीकरण के रूप में कर रहे हो या और नवकरणीय संसाधन के रूप में कर रहे हो। हमें उन अनवकरणीय संसाधन जैसे कोयला पेट्रोल के प्रयोग में ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब सोचिएगा कि कोयला पेट्रोलियम में जो है जागरूक रहने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कोयला पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लग जाती है और इसकी फॉर्मेशन होने में लाखों साल लगती है। तो इसका मतलब अगर आप इसको नष्ट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो ये दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। तभी आप देख रहे होगे कि आजकल के समय में जो है इलेक्ट्रिकल बाइक बहुत काफ़ी आ चुका है। तो इसका मतलब यही है कि हम अब जो है अलार्मिंग रेट पे आ चुका है पेट्रोल और कोयला, तो हमें कोई और संसाधन ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके। तो कहते हैं सभी मानवीय क्रियाकलापों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप जो भी करते हो, चाहे कोयला का उपयोग करते हो, चाहे किसी भी चीज़ को करते होगे, इससे जो होता है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है पर्यावरण पे। पिछले 2 दशकों में पर्यावरण पर मानव प्रभाव कई गुना बढ़ता ही चला गया है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि। देखिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो हुआ है हमारे जो है जीवन जो है कई मायने में बदल सा गया है और इससे जो है सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वो पर्यावरण को ही हुआ है। और पर्यावरण के नुकसान होने के कारण जो है सभी लोगों के जीवन जो है तहस नहस होने पे लगा हुआ है। तभी तो आप अभी देखते हो कई तरह की बीमारियां भी होती है, जिसे छुटकारा पाना संभवतः मुश्किल ही पड़ता है। विज्ञान और तकनीकी वृद्धि के कारण पर्यावरण के क्षरण के मनुष्य को अपने अस्तित्व का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि विज्ञान तकनीकी ने जो है इतनी वृद्धि हो गई है कि मनुष्य तो जो है आलस्य के एक नया रूप धारण कर लिया है। आज मनुष्य का मतलब होता है आलस। यानी ये सब क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने क्या किया है इस पर निर्भर पूरी तरह से हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवनचर्या भी जो है बिल्कुल नष्ट सा हो गया है। जितनी जल्दी इसे समझ लिया जाए कि पर्यावरण का संरक्षण उनमें गुणवत्ता संवर्धन मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है पर्यावरण के विषय में हर एक देश बात करता है, हर एक राज्य बात करता है, लेकिन कहते हैं ना इन पे जो इनका प्रतिक्रिया होती है वो जीरो होता है। कहते हैं विश्वव्यापी स्तर पर जो है पर्यावरण के अवेयरनेस की जो है कैंपस चलाई जा रही है, लेकिन देखा जाए तो इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जीरो के समान है। आप देखते ही होंगे कि लोग अपने लालच के आड़ में जो है पेड़ पौधों को ऐसे काट रहे हैं जैसे उनका हमारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लेकिन कहते हैं कि जैसे आप पेड़ पौधों को काटोगे, पेड़ पौधा भी आपको उसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने जो जीव जंतु के जो है आश्रय को ख़त्म कर दिया है, तो जीव जंतु जो है आज के समय में रोडों पर घूमता हुआ नजर आता है और यानी कई प्रकार के एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। तो इसका प्रभाव
तो ये तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। जनरल सी बात है कि हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु अपना निवास करती है, तो वो तो हमारे घर तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और घर तक पहुँचेंगे तो हमें कई तरह के नुकसान भी करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कुछ लोगों की जो है लालच के कारण ऐसा संभव हुआ है। प्राकृतिक संपदा जैसे भूमि, जल एवं वायु का जो बुद्धिमत्ता प्रयोग एवं स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए आवश्यक है, जो पर्यावरण एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध भी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि अगर भूमि, जल और वायु का अगर हम बुद्धिमत्ता से प्रयोग ना करें तो आने वाला समय में, जैसे आपको पता है कि कई राज्य हैं जहाँ पर अभी के समय में जो है ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण लेवल दिखाया जा रहा है, और कहते हैं पोल्यूशन शहर में भी है, इंडिया का ही सबसे नंबर 1 नाम है। तो इससे आप समझ सकते हो कि भारत जो है किस स्थिति में पहुंच गया है और आने वाला समय में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं बहुत इसमें मंत्री सब आते हैं और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर तरह के भाषण देते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी कदम नहीं उठाई जाती है। ये आपने भी देखा होगा और ये हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पर्यावरण की समस्याएं। देखिए, पर्यावरण की समस्याएं के विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। पर्यावरण कुछ विशेष समस्याएं जो है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही दिया हुआ है कि भूमि, वायु और पानी। देखिए, भूमि, वायु और पानी आखिर इसमें किस प्रकार की जो है पर्यावरण समस्याओं को उत्पन्न किया है। कहते हैं भूमि और पानी के जो है प्रदूषण से पौधे, जानवर और मानव जाति को काफ़ी प्रभावित किया है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को अगर मान लीजिए पानी रहेगा, वायु रहेगा और भूमि प्रदूषण होगा तो पौधे, जीव जंतु, मानव तो क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़ेंगे। कहते हैं चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधों हो, सारे प्राकृतिक के ही संतान माने जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे जब पर्यावरण की रचना हुई तो उस समय हर चीज़ जो थी एक दूसरे पर आश्रित बनाई गई। अगर मान लीजिए इंसान के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ी जाएगी तो पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे द्वारा जो ऑक्सीजन नहीं छोड़े जाएंगे तो इंसान नहीं जिंदा रह पाएगा। तो पर्यावरण ने बहुत सोच समझ के जो है इनकी संतुलन बनाने की कोशिश किया था। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहते हैं इनकी प्रभाव जो है काफ़ी देखने को मिलता है। कहते हैं अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 7 जो है मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हो रही है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि 5 से 7 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि का जो है कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है, यानी वनों को नष्ट करके जो है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वायु और पानी के कारण मृदा अपरदन विश्व के बहुत महंगा पड़ रहा है और बार बार बाढ़ आने से विशेष प्रकार की हानि होती है, जैसे वन क्षेत्र का घटना, नदियों में गाढ़ भरना, पानी निकासी का जो है पर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण होना, जान माल की काफ़ी हानि होना, सभी प्रकार के नाभिकीय कचरों को सागरों में डालने से पूरा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित और विषमता हो गई है। तो इसका प्रभाव यहाँ पर सब जगह देखने को मिल रहा है। कहते हैं इंसानों के लालच ने जो है इसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। आज जो इंसानों ने पेड़ पौधों को दिन प्रतिदिन जो नष्ट करते चले जा रहे हैं, क्या उनको समझ नहीं है। आप सोचिएगा कि पेड़ पौधे अनपढ़ लोग काटते हैं, गरीब लोग काटते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये ना तो अनपढ़ काट रहे हैं ना गरीब काट रहे हैं। ये बड़े बड़े मालिक लोग जो होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, वो जो है बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं। और दूसरी बात तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर घर के लिए जो है कुछ ज़मीनों को ऐसे बेचा जा रहा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। सरकार आए दिन आती है, हम इस पर रोक लगाएंगे, लेकिन जब जेब में पैसा भर जाती है तो डायरेक्ट जो है फिर से वो जो है रजिस्ट्री खोल देते हैं। तो ये हमारी विडम्बना नहीं है, ये देश की विडम्बना बना दिया है लोगों ने। कहते हैं पैसे की लालच ने तो इनको अपनी ज़मीन तक भी बेचने को उनको जो है प्रोत्साहित कर दिया है। कहते हैं ज़मीन तो इन्होंने ऐसे बेच रहे हैं जैसा इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप देखोगे जिस क्षेत्र में जंगल इतनी अधिक मात्रा में थी, वहाँ पर जंगल जो है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, और वहाँ पर जो जीव जंतु रहते थे वो सड़कों पर आए दिन आपको जो है मरे हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है इंसानों ने। उसके पश्चात हमारे समक्ष जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, सबसे बड़ा कारण अगर बनता है तो जनसंख्या वृद्धि ही है। कहते हैं जनसंख्या वृद्धि ने तो कहते हैं बहुत ही बुरा प्रभाव पर्यावरण पे डाला है। कहते हैं जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है खाने और सांस लेने वाले अधिक लोग। इससे भूमि और जंगलों पर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है, जिससे अत्यंत परिस्थितियों में असंतुलित पैदा जाता है। देखिए, कहते हैं अगर जनसंख्या बढ़ता है तो खाने की समस्या बढ़ेगी और सांस लेने की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि जितने व्यक्ति होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और उतने ही
जो है पेड़ पौधों को भोजन बनाने पड़ेंगे। और पेड़ पौधों को तो हम नष्ट तहस कर रहे हैं, तो उतना पेड़ तो रहेगा नहीं जितनी जनसंख्या रहेगी। तो आप समझ सकते हो कि इसकी बैलेंस क्या होगा। और इसका रिजल्ट सबसे अधिक आप देख सकते हो कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी जो है कमियाँ दिखने को मिल रहा है। हमारी बढ़ती जनसंख्या में भूमि पर बोझ बढ़ रहा है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता भी घटती चली जा रही है। अभी आप देखोगे कि हर साग सब्जी जितने भी तरह के उत्पाद मिल रहे हैं वो महंगे भी होते हैं और अच्छे क्वालिटी के भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी गुणवत्ता जो है घटती चली जा रही है, और इसका कारण कई मानने में जो है जनसंख्या वृद्धि ही समझी जा रह सकती है। वनों में कमी आती चली जा रही है और परिस्थिति में संतुलन के लिए वन क्षेत्र बहुत आवश्यक है, जिसके अभाव में वन जीवन विलुप्त होते जा रहे हैं तथा परिस्थिति में असंतुलित पैदा होता जा रहा है। जैसे अत्यंत कठिन जीव जो है लुप्त भी हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बहुत से जीव जंतु लुप्त भी हो गए हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए पहले के समय में गिद्ध कितना मात्रा में होता था। कोई भी अगर जानवर मरता था तो गिद्ध जो होता था 2 सेकेंड में उसको जो है मांस तक खा जाया करता था। लेकिन आज के समय में परिस्थिति बिल्कुल ही बदल गई है। आज गिद्ध जो है नष्ट हो गई है, और कोई भी जीव जंतु अगर मर जाता है तो उसकी लाशें सड़ रही होती है, बदबू फैला रही होती है और पर्यावरण को दूषित कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं कि जितना हम लोग आधुनिकीकरण के आड़ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारा लाइफ उतना ही खतरनाक होगा। कहते हैं सबसे बड़ी समस्या तो सरकार ने अभी खड़ी कर दिया है हमारे देश में 5G ला के। आपको शायद याद होगा कि जब 4G लॉन्च की गई थी तो बहुत से जीव जंतु जो थे मर गए थे, और ये सरकार को भी मालूम है कि ये 4G और 5G, क्योंकि इससे जो होता है जीव जंतु के मानसिकता पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, और ये कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन सरकार इस बात को कभी भी नहीं समझती है, क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि हमें तो पैसा यही 3G और 5G से ही प्राप्त होने वाला है, तो हम ऐसा क्यों रेगुलेशन न लगाएं। लेकिन ये देश के भविष्य के साथ ही सदैव खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ हर एक व्यक्ति को कि इसको जो है आप खुद नकार दीजिए। 5G के न तो सिम खरीदिए और न ही आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं अगर आप अपना भविष्य नहीं बचाइएगा तो आने वाले जो जिस बच्चे से आप प्यार करते हो, जिसको आप अपना कहते हो, उनके लिए ना तो ज़मीन सही रहेगा, न इनके वायु प्रदूषित, न वातावरण सही रहेगा, और वायु प्रदूषण में उनका जीवन जो है यापन करना पड़ेगा। ना उनको देखने के लिए कोई पक्षी मिलेगा, न कोई जानवर मिलेगा, ना ही कुछ प्रकार के जो है वस्तु मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और सरकार इस पे को कुछ भी नहीं जाता है। उनको तो धन दौलत की इतनी लालच पकड़ लिया है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो कहते हैं 5G जो कहते हैं बड़े बड़े देश में भी लॉन्च नहीं किया है, जो इंडिया में कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव क्या देखने को नहीं मिलेगा? सरकार को क्या इसकी इफेक्ट का पता नहीं है? सब पता है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पैसा का जो गर्मी होता है वहाँ पर लोगों के अच्छा और बुरा का जो है पहचान नहीं हो पाता है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। कहते जनसंख्या में वृद्धि केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही समस्या नहीं है, अतुल्य पर्यावरण के अन्य पौधे, पक्षियों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। यानी देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी काफ़ी समस्या उत्पन्न खड़ी कर रही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शहरीकरण। देखिए शहरीकरण ने भी काफ़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है। शहरीकरण भी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है और पर्यावरण के लिए खतरा भी सबसे बड़ा है। कहते हैं शहरीकरण का अर्थ है लोगों की शहर की ओर भागती भीड़। शहरीकरण का परिणाम ये हुआ है कि धूल, बीमारी और विनाश बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और शहरी की स्थिति में जो है सफाई, बीमारी, आवास, जल आपूर्ति, बिजली की समस्या निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में भी सोच जो है विचार में ईंधन की लकड़ी संग्रहित करने और अधिक चरगाहों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के हर्ष से पर्यावरण में काफ़ी क्षरण भी हुआ है। आपने देखा होगा कि पर्यावरण में जो है कई मायने में जो है नुकसान हुआ है। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते होगे, अगर 5 साल के बाद गांव में जाके देखना, आप सारे पेड़ पौधे कटे हुए नज़र आते हैं और सारे में जो लोग भूमि पे कृषि करते हुए नज़र आते हैं, या वहाँ पर आपको घर बना हुआ दिखता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं धरती उतना ही के उतना ही है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है, जिसका प्रभाव किसी दूसरे पे नहीं पड़ना है, हम मनुष्य पे ही पड़ना है, और इसका जो है हम समय समय पे इसका प्रकोप भी देखने को हमें मिलता ही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है औद्योगिकरण। कहते हैं औद्योगिकरण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहते हैं यातायात और संचार के साधनों के विकास के साथ औद्योगिकरण ने न केवल
पर्यावरण को प्रदूषित किया है, अतुल प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है। दोनों प्रकार से भारी हानि हो रही है। ऊष्मा प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, रेडियोधर्मी, नाभिकीय कूड़ा कचरा और इस प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर ने पर्यावरण खतरा बढ़ा दिया है। दूसरी ओर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की खपत से जो है प्राकृतिक संसाधन का हर्ष होना एक स्वाभाविक बात है। हम प्रभावी पीढ़ी की चिंता के बिना ही विश्व निर्माण कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं कि बड़े बड़े जो होते हैं देश भी इस बात को नहीं समझ पा रही है। कहते हैं अगर देखा जाए, अभी आपने देखा भी होगा कि कई क्षेत्रों में युद्ध छिड़ा हुआ है और इसमें क्या होता है, बहुत से बारूद बम विस्फोट होते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होती है। कहते हैं छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए और अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने पर्यावरण को ऐसे दूषित कर रहे हैं जैसे इस पर्यावरण में इनको रहना ही नहीं है। लेकिन कहते हो तो अमीर लोग हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन आम गरीब लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। उनके पास सिर्फ जीवन त्यागने के सिवा कोई विकल्प भी शेष नहीं रह जाएगा।